Good evening, everyone. Welcome back to your own channel, Scientia. I am Simran, and hopefully ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਹੋਵੋਗੇ ਐਂਡ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੀਪਰੇਸ਼ਨ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਊਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਦੀ ਜੋ ਸੀਰੀਜ਼ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦਾ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ ਟੌਪਿਕ ਕਵਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਯੂਨਿਟ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੀ, ਜੋ ਹੋਏਗੀ ਆਪਣੀ ਥਰਮੋਡਾਇਨਾਮਿਕਸ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਥਰਮੋਡਾਇਨਾਮਿਕਸ ਦੀ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਫੀ ਕੁਐਸਚਨ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦੇ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਥਰਮੋਡਾਇਨਾਮਿਕਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਫਲੋ ਆਫ ਹੀਟ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਥਰਮੋਡਾਇਨਾਮਿਕਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਫਲੋ ਆਫ ਹੀਟ ਇਨ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਔਰ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਔਰ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੀਟ ਦਾ ਫਲੋ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਥਰਮੋਡਾਇਨਾਮਿਕਸ। ਕਲੀਅਰ। ਥਰਮੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਹੀਟ ਹੁੰਦਾ ਐਂਡ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਮੋਸ਼ਨ। ਇਸ ਲਈ ਫਲੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹੀਟ ਦਾ ਫਲੋ ਹੋਣਾ, ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਮੋਸ਼ਨ ਆਫ ਹੀਟ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਨ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਂਡ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਥਰਮੋਡਾਇਨਾਮਿਕਸ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਲੀਅਰ। ਥਰਮੋਡਾਇਨਾਮਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਬੇਸਿਕ ਟਰਮ ਕੀ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਦ ਪਾਰਟ ਆਫ ਯੂਨੀਵਰਸ। ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਯੂਨੀਵਰਸ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਦ ਪਾਰਟ ਆਫ ਯੂਨੀਵਰਸ, the part of wait the part of universe ਜੋ ਕੀ ਹੈ ਅੰਡਰ ਥਰਮੋਡਾਇਨਾਮਿਕ ਸਟੱਡੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਡਰ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੰਡਰ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਸਟਮ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਲੀਅਰ। ਨੈਕਸਟ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸੈਕਿੰਡ ਜੋ ਟਰਮ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗਸ। ਸਰਾਊਂਡਿੰਗਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਦ ਰੈਸਟ ਪਾਰਟ ਆਫ ਯੂਨੀਵਰਸ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਦ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦ ਯੂਨੀਵਰਸ, ਦ ਰੈਸਟ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦ ਯੂਨੀਵਰਸ with which system can exchange both matter and energy। clear। ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਰੈਸਟ ਪਾਰਟ ਹੈ ਕਿਸ ਦਾ, ਯੂਨੀਵਰਸ ਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੈਟਰ ਅਤੇ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਟਰ ਐਂਡ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਰਾਊਂਡਿੰਗਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਲੀਅਰ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਯੂਨੀਵਰਸ ਹੈ ਉਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਦਾ। ਯੂਨੀਵਰਸ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਣਦਾ, ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ। ਕਿਸ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਣਦਾ, ਸਿਸਟਮ ਪਲੱਸ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ। ਕਲੀਅਰ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਆਹ ਕੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਲੈ ਲਓ, ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਯੂਨੀਵਰਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ। ਸਮਝ ਆਈਆਂ, ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝ ਆਈਆਂ। ਅੱਗੇ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਪਾਰਟਸ ਨੇ, ਟਾਈਪਸ ਲਗਾ ਲਓ। ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਸਿਸਟਮ, ਮੇਨਲੀ 3 ਟਾਈਪਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਓਪਨ ਸਿਸਟਮ, ਕਲੋਜ਼ ਸਿਸਟਮ ਐਂਡ ਆਈਸੋਲੇਟਡ ਸਿਸਟਮ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਓਪਨ ਸਿਸਟਮ ਦੀ। ਓਪਨ ਸਿਸਟਮ, ਦੇਖੋ ਓਪਨ ਸਿਸਟਮ ਨੇਮ ਤੋਂ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸਿਸਟਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮੈਟਰ ਐਂਡ ਐਨਰਜੀ ਬੋਥ। ਐਕਸਚੇਂਜ ਆਫ matter and energy both।
ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਓਪਨ ਸਿਸਟਮ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਲੀਅਰ। ਕਿਸ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ, ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਦੇ ਬਿਟਵੀਨ ਕੀ ਹੈ, ਐਨਰਜੀਜ਼ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਟਰ ਐਂਡ ਐਨਰਜੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਓਪਨ ਸਿਸਟਮ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਲੀਅਰ। ਜਿਵੇਂ ਆ ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਇਸ ਦੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਲੀਅਰ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਟਰ ਵੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਓਪਨ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਓਪਨ ਹੈ, ਖੁੱਲੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੈਟਰ ਔਰ ਐਨਰਜੀ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਕੱਪ ਆਫ ਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੱਪ ਆਫ ਟੀ ਲਗਾ ਲਓ, ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਮੈਟਰ ਵੀ ਐਂਡ ਐਨਰਜੀ ਵੀ, ਜਿੰਨੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਲੀਅਰ। ਸੈਕਿੰਡ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਕਲੋਜ਼ਡ ਸਿਸਟਮ। ਕਲੋਜ਼ਡ ਸਿਸਟਮ, ਕਲੋਜ਼ਡ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਓਨਲੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ, ਮੈਟਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਮੀਨਸ ਮਾਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਐਨਰਜੀ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਐਨਰਜੀ। ਕਲੀਅਰ। ਐਨਰਜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਗੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਮੈਟਰ ਐਂਡ ਨੋਟ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ, ਮਤਲਬ ਮਾਸ ਨਹੀਂ, ਮੈਟਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਸ ਐਂਡ ਵੋਲਿਊਮ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸ ਐਕਸਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਲੋਜ਼ਡ ਸਿਸਟਮ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕਰਦੇ, ਇੱਕ ਕਲੋਜ਼ਡ ਵੈਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ, ਇੱਕ ਕਲੋਜ਼ਡ ਵੈਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੀ ਆਪਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਗੀ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਐਨਰਜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੈਟਰ ਜਿੰਨਾ ਮਾਸ ਹੈ ਉਨਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਉਹ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਕਲੀਅਰ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਕੱਪ ਆਫ ਟੀ ਲੈ ਲਓ, ਬਟ ਇਸ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਲਿਡ ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ, ਕਵਰ ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਐਨਰਜੀ ਤਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋਊਗੀ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਚਾਹ ਜੋ ਹੈ ਠੰਡੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਬਟ ਉਹਦੀ ਜਿੰਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸ ਹੈ ਉਹ ਓਨਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਉਹ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਆ ਲਿਡ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਵੇਪਰਸ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਕਲੀਅਰ। ਸਮਝ ਆਇਆ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਥਰਡ, ਆਈਸੋਲੇਟਡ ਸਿਸਟਮ ਦੀ। ਆਈਸੋਲੇਟਡ ਸਿਸਟਮ, ਆਈਸੋਲੇਟਡ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਦੇਖੋ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੋਵੇ ਐਨਰਜੀ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਨਾਈਦਰ ਐਕਸਚੇਂਜ ਆਫ ਐਨਰਜੀ ਨੋਰ ਮੈਟਰ, ਮਤਲਬ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਕਸਚੇਂਜ ਨਾ ਹੋਣ। ਕਲੀਅਰ। नो एक्सचेंज ऑफ मैटर एंड एनर्जी, एनर्जी एंड मैटर, कुछ भी लिख सकते हो। क्लियर। बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, ये तुसी लिख सकते हो डेफिनेशन, नोट्स खुद तैयार करो तो ज़्यादा समझ आऊगा, ज़्यादा क्लीयर होगा। ये एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल है अपने घर थर्मोस होंगी है ना, थर्मस फ्लास्क आप विंटर्स यूज़ करते हैं ज़्यादातर, जिस दे अंदर की है मिरर लगे, शीशा लग्या ना, ग्लास लग्या होंदा है। क्लीयर। मेरे तो वैसे बननी नहीं, बट मैं ट्राई करती हूँ। क्लीयर। इस दे अंदर की लग्या होंदा, ग्लास लग्या होंदा, उपरों भी कवर होंदी है ना, तो ध्यान दे विच होवे थर्मस। ओह की एक आइसोलेटेड सिस्टम है, ये की होंदी एक आइसोलेटेड सिस्टम है, या एडियाबैटिक भी बोल देंगे हो, जिस दे विच ना तो मैटर एक्सचेंज हो रहा ना ही एनर्जी। क्यों? क्योंकि देखो जिस अगर तुसी ठंडा पानी पा रहे हो तो इस बोतल दे विच ठंडा ही रहेगा, एंड अगर गर्म चीज़ पा रहे हो तो काफ़ी टाइम तक गर्म ही चीज़ रहेगी, और मैटर जिन्ना है, मास जिन्ना है वो उन्ना ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। उसनों आपां की बोल देंगे, आइसोलेटेड सिस्टम बोल देंगे। क्लीयर होई इन्नी क चीज़। क्लीयर। नैक्सट आप गल करांगे द स्टेट ऑफ द सिस्टम, द स्टेट ऑफ द सिस्टम। हाँ जी, स्टेट ऑफ द सिस्टम का की मतलब है, ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ सिस्टम ਦੀਆਂ कुछ प्रॉपर्टीज़, जिमें अपने को प्रैशर, वॉल्यूम,
ਟੈਂਪਰੇਚਰ। ਕਲੀਅਰ। ਇਹ ਕੁਛ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਜਾਂ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲਗਾ ਲਓ ਇੱਕ ਕੁਆਂਟੀਟੇਟਿਵਲੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਟੇਟਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੇਅਰੇਬਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਕੀ ਹੋਣ, ਇੱਕ ਚੇਂਜ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਆਉਂਦਾ, ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਅੰਡਰਗੋ a change, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਨਦਰ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਸਟੇਟ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਟੇਟ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਟੇਟ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਆ ਜਾਣਾ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਟੇਟ ਵੇਰੀਏਬਲ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਜੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਲਈਆਂ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲਿਆ, ਵੋਲੀਅਮ ਲਿਆ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਲਿਆ। ਕਲੀਅਰ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਵਨ ਸਟੇਟ ਟੂ ਅਨਦਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਟੇਟ ਵੇਰੀਏਬਲ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਲੀਅਰ। ਕੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਟੇਟ ਵੇਰੀਏਬਲ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਸੋਲਿਡ ਟੂ ਗੈਸੀਅਸ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਟੇਟ ਵੇਰੀਏਬਲ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਆਪਾਂ ਥਰਮੋਡਾਇਨਾਮਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਵੋਲੀਅਮ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਟੇਟ ਵੇਰੀਏਬਲ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਲੀਅਰ। ਕਲੀਅਰ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਟੇਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਪਾਥ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਸਟੇਟ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਸਟੇਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜੋ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਐਂਡ ਫਾਈਨਲ ਸਟੇਟ ਆਫ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਟੇਟ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਕਲੀਅਰ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਕੀ ਹੈ, ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਫਾਈਨਲ ਸਟੇਟ। ਹੁਣ ਸਟੇਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਕੁਝ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਵੋਲੀਅਮ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਵੋਲੀਅਮ ਐਂਡ ਟੈਂਪਰੇਚਰ, ਇਹ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ P1 V1 T1 ਲੈ ਲਿਆ। ਇਹ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਿਸ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ, P2 V2 T2। ਮਤਲਬ ਇਹ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸੀ, ਇਹ ਫਾਈਨਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇ, ਮਤਲਬ ਚੇਂਜ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਆ ਰਿਹਾ, ਵੋਲੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਆ ਰਿਹਾ, ਟੈਂਪਰੇਚਰਸ 'ਚ ਚੇਂਜ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਟੇਟ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਮੀਨਸ ਜਿਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਡੈਲਟਾ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਫਾਈਨਲ ਸਟੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੀਨਸ ਡੈਲਟਾ ਯੂ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਡੈਲਟਾ ਜੀ, ਡੈਲਟਾ ਐਸ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, U2 ਮਾਈਨਸ U1। ਮੀਨਸ ਇਹਦਾ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਫਾਈਨਲ ਸਟੇਟ ਆ ਗਿਆ G2 ਮਾਈਨਸ G1। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਫਾਈਨਲ 'ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡਿਪੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਸਟੇਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਕਲੀਅਰ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪਾਥ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ। ਜੋ ਹੁਣ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਨਗੇ ਪਾਥ 'ਤੇ, ਰਸਤੇ 'ਤੇ, ਪਾਥ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਥ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਲੀਅਰ। ਜੋ ਰਸਤਿਆਂ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਵਰਕ, ਹੀਟ, ਕਿਉਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹੀਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੈਪੈਸਿਟੀ, ਟੋਟਲ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੀਟ ਕੈਪੈਸਿਟੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਨੇ, ਪਾਥ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੇ, ਜੋ ਕਿਸ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰਸਤੇ 'ਤੇ। ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਫਾਈਨਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਕਿਸ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਨ, ਕਿਵੇਂ ਪਾਥ ਕੀ ਹੈ, ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ।
जो मतलब सिंपल इनीशियल ते फाइनल ते वो स्टेट फंक्शन, जो रस्ता भी पाथ लैके चल रहा था वो पाथ डिपेंडेंट पाथ फंक्शन। क्लियर? ठीक है जी। जिमें हुण अगे आपां गल करिए, दो प्रॉपर्टीज़ अपनियां होर आ जांदियां ने। नैक्सट आ जांदियां ने जिमें हुण आपां पहलां एक गल कर लैंदे इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी की गल करते हैं आप अगे चलने तो पहला। ठीक है, इंटरनल एनर्जी की हुंदा देखो, इंटरनल एनर्जी द सम ऑफ ऑल एनर्जी, all energies like kinetic energy, potential energy, bond energy etc. ये सारियां नूं आपां की बोलते हैं? इंटरनल एनर्जीज बोलते हैं। क्लीयर? ठीक है जी। होर इनू आपां की कह सकते हैं, होर की डिफाइन कर सकते हैं आपां कि आपां की कह सकते हैं द एब्सल्यूट वैल्यूज़। होर की कह सकते हैं आपां? एब्सल्यूट वैल्यूज़ internal energies cannot be determined, cannot determine, पर तुसी इसनों की है डिटरमाइन नहीं कर सकते कि इसनों एब्सल्यूट वैल्यू इंटरनल एनर्जी की, पर आपां कैलकुलेट कर सकते हैं। बट वी कैन कैलकुलेट, और आपां की निकाल सकते हैं? चेंज ऑफ, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी चेंज निकाल सकते हैं। क्लियर? ये अपने कोल है कि इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन है जो अपने कोल इनीशियल ते फाइनल ते की कर दिया, डिपेंड कर दिया। मीनस किमें लवांगे? डेल्टा ई U2 माइनस U1 या डेल्टा E2 माइनस E1। क्लियर? इंटरनल एनर्जी की हो गया सम ऑफ ऑल एनर्जी, सारी एनर्जीज के सम नूं आपां की बोल दिंदे आ? इंटरनल एनर्जीज बोल दिंदे आ। क्लीयर हो गया? उम्मीद है तुहानूं इन्नी चीज़ समझ आई होनी। ठीक है जी। नैक्सट आप गल करते हैं, नैक्सट जो अपने कोल की ने कुछ प्रॉपर्टीज़ ने एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़। नैक्सट आप गल करांगे एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। सब तो पहला की है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़। हाँ जी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ की होंदियां ने मतलब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी सिस्टम दियां वो प्रॉपर्टीज़ ने जो किस ते डिपेंड करदियां ने? अपने कोल अमाउंट ऑफ सबसटांस ते। किस ते डिपेंड करदियां ने? अमाउंट ऑफ सबसटांस ते। क्लियर? कि कितना सबसटांस की ने सिस्टम कंटेन कर रहा है, एक सिस्टम कंटेन कितना सबसटांस कर रहे हैं, उसनों आपां की बोल दिंदे आ? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ बोल दिंदे आ। जिमें मास, मैं तुहानूं लिखदी हाँ क्योंकि पेपर च ना सीधा सीधा अपने कोल की पूछ लैंदे ने एग्जाम्पल्स। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ की एग्जाम्पल की है? मास, वॉल्यूम, हीट कैपेसिटी। हुणे मैं सी लिखिया सी, इसका सिंबल है, आप पढ़ांगे बहुत डिटेल दे विच करांगे इसनूं। हीट कैपेसिटी, इस तो अलावा इंटरनल एनर्जी यू, हुणे आपां गल कीती सी इंटरनल एनर्जी, इंथैल्पी, ये सब की ने अपने को एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ ने। वो प्रॉपर्टीज़ जो अमाउंट ऑफ सबसटांस कितना सिस्टम कंटेन कर रहा है उस ते की कर दी है, डिपेंड कर दी है। उसनों आपां की कह दिंदे आ? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ कह सकते हैं। ठीक है जी। नैक्सट आपां गल करांगे इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ की होंदी हैं जो इंडिपेंडेंट होंदियां ने क्वांटिटी ऑफ मैटर तो। क्लियर? जो इंडिपेंडेंट ने किस तो? क्वांटिटी ऑफ
मैटर तो कि कितना मैटर कंटेन हो रहा है किस दे विच सिस्टम दे विच किस ते डिपेंड करते हैं नेचर ऑफ सबसटेंस जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है ध्यान दे विच रखियो बहुत क्वेश्चंस बने हुए हैं जो नेचर ते डिपेंड करते हैं किस तरीके का नेचर है सबसटेंस का ओनली ऑन नेचर ते डिपेंड करते हैं कोई मतलब नहीं किन्नी क्वांटिटी दे विच हैगे हैं क्लीयर उन्होंने बोलते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ हुण इसदियां एग्जांपल्स तुसीं नोट डाउन कर सकते हो नोट्स बना लियो जिवें टैंपरेचर प्रैशर विस्कोसिटी विस्कोसिटी की होंदा है गाढ़ापन जिवें शहद की विस्कोसिटी ज़्यादा होंदी है एज कंपैरिजन टू वाटर डेंसिटी डेंसिटी नूं पंजाबी च की बोलते हैं घनता मास पर यूनिट वॉल्यूम सरफेस टेंशन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्पेसिफिक हीट फ्रीजिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ये सब की ने अपने को इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ ने इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ ने देखो तो किसी भी तरीके ना क्वेश्चन बन सकता है तो सीधा 4 ऑप्शन दित्तियां हो सकदियां जिहदे विच तुसीं दसना होगा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी किहड़ी है तो 4 ऑप्शन दित्तियां होणगियां तुसीं दसना है इन्हां दे विचों किहड़ी इंटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं हैगी तो किसी भी तरीके ना क्वेश्चन बन सकता तो एग्जाम्पल्स आनियां ही चाहिए ने एग्जाम्पल्स स्किप नहीं करोगे तुसीं क्लीयर इस तो अलावा 4 टाइप का अपने कोल की होंगे थर्मोडायनामिक प्रोसैस थर्मोडायनामिक प्रोसैस अगे 4 टाइप्स के विच डिवाइड होंदा क्लीयर इसदियां कितनियां टाइप्स ने 4 टाइप्स ने एक एक करके स्टडी करांगे किहड़े होंगे अपने कोल आइसोथर्मल प्रोसैस एडियाबैटिक प्रोसैस आइसोकोरिक प्रोसैस एंड आइसोबारिक प्रोसैस क्लीयर सब तो पहला अगर आप गल करिए फर्स्ट वन है आइसोथर्मल प्रोसैस आइसोथर्मल प्रोसैस देखो इन्होंने सब दे विच जिसकी मैं गल की अपने को 4 टाइप ऑफ सिस्टम की सब दे विच मेनली मैं वर्ड की यूज़ किया है आइसोथर्मल है ना मतलब आइसो वर्ड यूज़ होया आइसो का मतलब कहते सेम आइसो का मतलब की होंगे सेम वेट कलर चेंज कर लिया आइसो का मतलब होंगे सेम ए प्रोसैस इन विच टैंपरेचर रिमेन कॉन्सटेंट थर्मल का मतलब की होंगे टैंपरेचर क्लीयर थर्मल मतलब टैंपरेचर जिस दे विच टैंपरेचर सेम रहे उसनों आपां की बोल देंगे आइसोथर्मल प्रोसैस टैंपरेचर रिमेन कॉन्सटेंट का मतलब की है डेल्टा टी किस दे इक्वल आ गया अपने को 0 के इक्वल आ गया क्लीयर ठीक है जी जिस दे विच मेनली अगर आप गल करिए टैंपरेचर सेम रहे जिमें मेल्टिंग ऑफ आइस किन्ने च होंदी 0 डिग्री सैल्सीयस से यह किस दी एग्जाम्पल होगी आइसोथर्मल के मतलब टैंपरेचर हमेशा सेम रहूगा जदों भी तुसी की करना है आइस नू की करना है मेल्ट करना है क्लीयर समझ आया उसनों आपां की बोल देंगे आइसोथर्मल प्रोसैस बोल देंगे जिहदे विच टैंपरेचर अगर सिंपल टी लिखोगे तो इज इक्वल टू कॉन्सटेंट पाना पएगा डेल्टा टी का मतलब की लिखवाया से मैं तुहानूं चेंज इन टैंपरेचर वो अपने कोल की हुंदा है 0 हो जाता है ठीक है क्लीयर होया समझ आई है ये चीज़ कि आइसोथर्मल प्रोसैस की होंदा जिहदे विच टैंपरेचर की रवे अपने कोल कॉन्सटेंट रवे नैक्सट इस तो अलावा अगर मैं गल करा वेट करो ग्राफ तुहानूं बाद विच करवा दा या नाल ही चलो ग्राफ बाद च देखते हैं पहले डेफिनेशंस क्लीयर कर लिए सैकेंड वन की है अपने को एडियाबैटिक प्रोसैस एडियाबैटिक प्रोसैस हाँ जी एडियाबैटिक प्रोसैस की होंदा ओ प्रोसैस ए प्रोसैस इन विच नो हीट एक्सचेंज
ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਟ ਐਕਸਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਨੋ ਹੀਟ ਐਕਸਚੇਂਜ। ਕਲੀਅਰ। ਬਿਟਵੀਨ ਸਿਸਟਮ ਐਂਡ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ, ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੀਟ ਐਕਸਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਉਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲੋਗੇ? ਐਡੀਆਬੈਟਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਮੀਨਸ ਕਿਊ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਜ਼ੀਰੋ। ਡੈਲਟਾ ਕਿਊ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਜ਼ੀਰੋ, ਮਤਲਬ ਚੇਂਜ ਇਨ ਹੀਟ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਂਡ ਕਿਊ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕੌਨਸਟੈਂਟ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ? ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ। ਐਡੀਆਬੈਟਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਕਸਚੇਂਜ ਆਫ ਹੀਟ ਕੀ ਰਹੂਗਾ? ਕੌਨਸਟੈਂਟ, ਮਤਲਬ ਹੀਟ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਬਿਟਵੀਨ ਸਿਸਟਮ ਐਂਡ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ। ਥਰਡ ਟਰਮ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਥਰਡ ਵਨ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਵੇਟ। ਆਈਸੋਕੋਰਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਆਈਸੋਕੋਰਿਕ, ਆਈਸੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੇਮ, ਕੋਰਿਕ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦਾ? ਵੋਲੀਅਮ ਨਾਲ। ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਲੀਅਮ ਸੇਮ ਰਵੇ, ਅ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਨ ਵਿਚ ਵੋਲੀਅਮ ਰਿਮੇਨ ਕੌਨਸਟੈਂਟ, ਵੋਲੀਅਮ ਕੀ ਰਵੇ? ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਰਵੇ, ਉਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਆਈਸੋਕੋਰਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਮੀਨਸ V ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਐਂਡ ਚੇਂਜ ਇਨ ਵੋਲੀਅਮ ਡੈਲਟਾ V ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕਿਸ ਦੇ ਆ ਜਾਊਗਾ? ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ। ਕਲੀਅਰ। ਉਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਈਸੋਕੋਰਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫੋਰਥ ਟਰਮ ਕੀ ਸੀ? ਆਈਸੋਬਾਰਿਕ। ਬਾਰ ਕਿਸ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ। ਆਈਸੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੇਮ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੀ ਰਵੇ? ਸੇਮ। ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਰਿਮੇਨਸ ਕੌਨਸਟੈਂਟ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਨਾ ਆਵੇ, ਉਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਆਈਸੋਬਾਰਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੀਨਸ P ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕੀ ਹੈ? ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਐਂਡ ਚੇਂਜ ਇਨ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਜ਼ੀਰੋ। ਕਲੀਅਰ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 4 ਥਰਮੋਡਾਇਨਾਮਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੀਆਂ ਟਾਈਪਸ ਨੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਪਤਾ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਾਫ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ, ਵੇਟ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਾਂ ਥਰਮੋਡਾਇਨਾਮਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੇਰੀਅਸ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਲੀਅਰ। ਕਿਸ ਕਿਸ ਨੂੰ? ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ, ਵੋਲੀਅਮ ਐਂਡ ਇੰਟਰਨਲ ਐਨਰਜੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ 4 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਲੀਅਰ। ਇਹ ਜੋ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਨੇ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਮੇਨਲੀ? ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਵੇਟ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਕੌਨਸਟੈਂਟ, ਜੋ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਕਲੀਅਰ। ਅਗਰ ਇਹ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦਈਏ ਆਪਾਂ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੇ ਵੋਲੀਅਮ ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦਈਏ, ਤਾਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਫਿਕਸ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ PV ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ RT। ਅਗਰ ਮੈਂ 2 ਨੂੰ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਮਤਲਬ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਦਾ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਇਹ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਚੇਂਜ ਕਹਿ ਦਈਏ ਆਪਾਂ, ਫਿਕਸਡ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਖੁਦ ਬ ਖੁਦ ਕੀ ਹੋ ਜੂਗੀ? ਫਿਕਸਡ ਹੋ ਜੂ, ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਵੀ। ਕਲੀਅਰ। ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੋਈ ਵੀ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 'ਚ। ਕਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ? ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੇ ਵੋਲੀਅਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਰੱਖਤੇ? ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਰੱਖਤੇ। ਕਲੀਅਰ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਟੇਟ ਆਫ ਸਿਸਟਮ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਲੀਅਰ। ਸਟੇਟ ਆਫ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਚੇਂਜ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ? ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ? ਚੇਂਜ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਰੱਖ ਕੇ। ਗ੍ਰਾਫ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਆਈਸੋਬਾਰਿਕ ਦੀ, ਆਈਸੋਬਾਰਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ? ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਹੋਏਗਾ,
स्टेट ऑफ सिस्टम किवें चेंज होंदा है अगर मैं एक पैरामीटर नूं चेंज कर सकदी हाँ। क्लीयर। प्रैशर की है कॉन्सटेंट है, आइसो का मतलब सेम सीगा। ग्राफ समझते हैं किस किस दे विचकार हुंदा है, प्रैशर ते वॉल्यूम। इसका मतलब वॉल्यूम की हो रहा चेंज, की आ गया VI/VF। इसनों आप फाइंड आउट किवें कर सकते हैं, वर्क इज इक्वल टू PVF-VI। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग तुसी फाइंड आउट कर सकते हो। आप रीड करांगे क्लीयर, क्योंकि मतलब स्टडी करांगे डिटेल दे विच। प्रैशर इस कॉन्सटेंट है, चेंज किस आ रहा वॉल्यूम च। क्लीयर। इस दे विच की है अगर यही अपने कोल की हो जाता है पॉजिटिव, मतलब ये जो इक्वेशन है वर्क डन, क्लियर। अगर चेंज इन वॉल्यूम पॉजिटिव है तो अपने कोल की हो एक्सपेंशन, अगर चेंज इन वॉल्यूम नेगेटिव है देन अपने कोल की हो रही है कॉन्ट्रैक्शन। क्लियर। नैक्सट अगर आप गल करिए आइसोकोरिक की, क्लियर। इस दे विच की है वॉल्यूम सेम, इसका मतलब वर्क डन कुछ भी नहीं हो रहा, वर्क डन की है जीरो। क्लियर। वर्क डन की हो रहा अपने को जीरो, जो वॉल्यूम ही कॉन्स्टेंट नहीं है तो सिस्टम कोई भी वर्क नहीं कर रहा। ठीक है जी। तो इसका ग्राफ की बनू V प्रैशर तो वॉल्यूम के बिटवीन, तो इसका जो ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन बनेगी, स्ट्रेट लाइन बनेगी इस तरीके ना। क्लियर। ठीक है जी। इटू ना तो कॉन्ट्रैक्ट हो ना एक्सपैंड हो, किस दे अकॉर्डिंग, फर्स्ट ला के अकॉर्डिंग। फर्स्ट ला आप करना है फर्स्ट ला ऑफ थर्मो, ये मैं तुहानूं थोड़ा थोड़ा दस रही हाँ। फर्स्ट ला ऑफ थर्मोडायनामिक के अकॉर्डिंग इस दे विच ना कॉन्ट्रैक्शन होएगी ना एक्सपेंशन होएगी। क्लीयर। फर्स्ट ला किसी Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। हुण U वर्क डन अपने को जीरो है, इसका मतलब की होया जो इंटरनल एनर्जी अपने को मतलब डेल्टा U वो किस दे इक्वल होगी Q दे। ठीक है जी। चेंज इंटरनल एनर्जी किस दे हो गया इक्वल हीट ट्रांसफर दे, चेंज इन इंटरनल एनर्जी किस दे इक्वल हो गया हीट ट्रांसफर दे। क्लीयर। नैक्सट आप गल करांगे आइसोथर्मल प्रोसैस। मीन्स टैंपरेचर कॉन्स्टेंट, मीन्स यह किस दे विच आ जाता है, टैंपरेचर कॉन्स्टेंट का मतलब की है जो अपने को ग्राफ बनाने वाला, जो सिस्टम की है कंटैक्ट करता है बाहरलियां चीज़ां ना, मतलब ओपन सिस्टम। ये हीट नू की कर रहा है एक्सचेंज, इसका मतलब हीट एक्सचेंज हो रही है टैंपरेचर नू अगर मैं कॉन्स्टेंट रख ला। ठीक है। हीट की होगी आइसोथर्मल दे विच एक्सचेंज होगी। क्लीयर। टैंपरेचर की रहूगा कॉन्स्टेंट रहूगा, मतलब इंटरनल एनर्जी डेल्टा U अपने कोल की हो जूगी जीरो हो जूगी। चेंज इन इंटरनल एनर्जी अपने कोल की हो जूगी जीरो हो जू, क्योंकि इंटरनल एनर्जी किस ते डिपेंड करती है टैंपरेचर ते डिपेंड करती है। क्लीयर। ये भी कितों आया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक तो, क्योंकि यही अपने को जीरो है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी का मतलब क्यों किस दे इक्वल हो गया वर्क डन दे इक्वल हो गया। क्लीयर।
क्यू की अपने को कितनी हीट की होगी ट्रांसफर। क्लियर। नैक्सट आप लास्ट करते हैं एडियाबैटिक प्रोसैस। एडियाबैटिक प्रोसैस का की मतलब है जिस दे विच की है अपने कोल कोई भी हीट एक्सचेंज नहीं हो रही, नो हीट एक्सचेंज। डिटेल दे विच करांगे हजे थोड़ा जिहा समझ लो। मीनस क्यू की है जीरो है, आइसोलेटेड आपां ने कीता सी। इस दे विच की हुंदा है जो चेंज आ जाता है अपने कोल इंटरनल एनर्जी दे वो नैगेटिव वर्क डन दे इक्वल आ जाता है। क्लीयर। देखो ये भी किस दे अकॉर्डिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि जो अपने कोल की है क्यू है वो जीरो होगी, चेंज नहीं हो रहा अपने कोल हीट दे विच, तां यही अपने कोल किस दे इक्वल आ गया नैगेटिव दे, नैगेटिव वर्क डन दे। तां इसदा मतलब की होया नैगेटिव वर्क डन इंटरनल एनर्जी इनक्रीज होगी अगर अपने को नैगेटिव वर्क डन होगा। क्लीयर। ये मैं तुहानूं सिंपली मतलब इन्नी क चीज़ दसती। ठीक है, आपां ये डिटेल च करांगे। हजे तुहानूं मैं सिंपल की दस्सिया कि किस तरीके नाल होएगा ये। हाँ जी, देखो क्लीयर होया ये ना। मैं तुहानूं जस्ट थोड़ा जिहा क्योंकि आपां टाइप्स कर रहे सी उसकी डिस्कशन की है आपां, मैं इनू डिटेल दे विच दोबारा भी रिपीट करवाऊँगी क्योंकि आपां हजे फर्स्ट लॉ करना है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स करना है। ये जस्ट मैं तुहानूं इंट्रो दी है क्योंकि मैंने टाइप्स शुरू कर लिया सी, सोचा थोड़ा जिहा ग्राफ के नाल ज़्यादा समझ आता है। तो अगर तुहानूं इक्वेशनस ना भी क्लीयर हुई तो टेंशन नहीं लैनी, आपां रिपीट जरूर करांगे। क्लीयर। आपां हुण पहला फर्स्ट लॉ ही कर लैंदे हां ताकि तुहानूं ज़्यादा क्लीयर हो जाए। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की कहते हैं कि स्टेट करते हैं कि एनर्जी नूं ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor destroyed however it can be transformed from one form into another। सिर्फ इनू आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, बदल सकते हैं। इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, एक फॉर्म तो दूसरी इंटू अनदर। इसनों आपां की कह दिंदे आ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक, जिहदे विच एनर्जी नूं आपां एक फॉर्म दे विचों दूसरे फॉर्म दे विच चेंज कर सकते हैं। होर की कह सकते हैं जिस दे विच टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी ऑफ यूनीवर्स, यूनीवर्स की जो टोटल एनर्जी है वह की रहे कॉन्सटेंट, रिमेन कॉन्सटेंट। उसनों आपां की कह दिंदे आ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कह दिंदे आ। ठीक है जी। हुण अगर इहदा मैथमैटिकल फॉर्मूलेशन देखा जाए तो आपां कंसीडर करांगे एक सिस्टम जिस दे विच इनीशियल स्टेट ते अपने कोल इंटरनल एनर्जी U1 है। क्लीयर। अगर हीट इक्वल टू क्यू, हीट की अपने कोल क्यू जो सप्लाई की जा रही है सिस्टम नूं, ये हीट है। वर्क डन W जो ऑन द सिस्टम हो रही है, ये ध्यान च रखियो, ऑन द सिस्टम, बाय द सिस्टम। ठीक है जी। तो अपने को जो इंटरनल एनर्जी होगी ऑफ सिस्टम की वो किस दे इक्वल होगी, एक मिनट, इंटरनल एनर्जी अगर फाइनल की गल करिए वो कितनी होगी U2, यही अपने को की है इनीशियल, U2 अपने को की है फाइनल। क्लीयर। तो अपने को रिलेशन की बनता है U2 इज़ इक्वल टू U1 प्लस Q प्लस W। समझ आ रहा है ना। U2 फाइनल इंटरनल एनर्जी, U1 इनीशियल, Q हीट, W अपने को वर्क डन ऑन द सिस्टम।
इधर की आ जाएगा U2 माइनस U1 इज़ इक्वल टू Q प्लस W। क्लीयर। U2 माइनस U1 मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इसनू डेल्टा U भी लिख सकते हैं, मैं तुहानूं दस्सिया सी चेंज इन इंटरनल एनर्जी ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡੈਲਟਾ ਯੂ ਨਾਲ ਲਿਖ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ, ਚੇਂਜ ਇਨ ਇੰਟਰਨਲ ਐਨਰਜੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਹੀਟ ਗਿਵਨ ਟੂ ਦ ਸਿਸਟਮ प्लस वर्क डन ऑन द सिस्टम। ये अपने को फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का रिलेशन है बिटवीन इंटरनल एनर्जी हीट एंड वर्क डन। मैथमैटिकल स्टेटमेंट अपने को यह बनती है, ध्यान दे विच रखियो। इसदियां एप्लीकेशनस कर दिया। सब तो पहला मैं गल करूँगी हीट की एप्लीकेशन ऑफ हीट। हीट की है देखो, जो एनर्जी एक्सचेंज हो रही है बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, तो ये जो टैंपरेचर्स होंगे, जो टैंपरेचर्स होंगे ये की होंगे डिफरेंट होंगे, अलग अलग होंगे, जिन्हों आपां कॉमनली आप की कह दें उसको हीट कह दें। अगर इफ अ सिस्टम इज़ एट अ टैंपरेचर हायर दैन द टैंपरेचर ऑफ इट्स सराउंडिंग, अगर सिस्टम का टैंपरेचर ज़्यादा है सराउंडिंग के टैंपरेचर नालों, टी का मतलब टैंपरेचर है, then it loses temperature are then it loses heat energy to the surrounding। तो यह की करते हैं हीट एनर्जी नू की कर देंगे ने लूज़ कर देंगे ने, हीट एनर्जी की हो जाती है इस लूज़ हो जाती है, ध्यान दे विच रखियो। क्योंकि जो ट्रांसफर होंदी है हीट दी वो की होंदी है जिन्ना टैंपरेचर लो है सिस्टम का एंड रेजिज द टैंपरेचर ऑफ सराउंडिंग, वो सराउंडिंग का टैंपरेचर की कर दूगी रेज कर दूगी। क्लीयर, टैंपरेचर सराउंडिंग का वधा दूगी। क्लीयर समझ आई। अगर सिस्टम का टैंपरेचर ज़्यादा है सराउंडिंग के नालों तो हीट एनर्जी अपने को लूज़ होगी सो दैट वो सराउंडिंग का टैंपरेचर इनक्रीज़ कर पाए। क्लीयर। नैक्सट आप गल करांगे वर्क डन की। बी की अपने को वर्क डन, सैकेंड एप्लीकेशन वर्क डन। वर्क डन की होंदा जो आप मतलब एक आप वर्क डन का मतलब आप फिजिक्स भी लगाने एक सर्टन डिस्टेंस तो जो आप फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स मूव थ्रू अ सर्टन डिस्टेंस, थ्रू अ सर्टन डिस्टेंस, उसनों आप की बोल दें वर्क डन। क्लीयर, उसनों आप की बोल दें वर्क डन। अगर कहते कोई भी गैस आप जो सिलेंडर है उन्होंने कहते एयर टाइट पिस्टन के नाल लगाने, जिथे प्रैशर हाई है किस दे नालों एक्सटर्नल, वो जो बाहरली प्रैशर है वो ज़्यादा है एक्सटर्नल प्रैशर के नालों, जिहड़ा पिस्टन है वो आउटवर्ड की करूँगा मूव करूँगा। इफ अ गैस इनक्लोज्ड इन अ सिलेंडर फिटेड विद फिट किया जाता है उसनों एयर टाइट पिस्टन के नाल, एयर टाइट पिस्टन दे नाल हैज़ जिहदा की है प्रैशर हाई है किस दे नालों एक्सटर्नल प्रैशर दे नालों, तो उसका जो पिस्टन है वो आउटवर्ड की करेगा मूव करेगा। पिस्टन कब तक मूव करेगा, जब तक प्रैशर अंदर वाला ते बाहर वाला इक्वल नहीं हो जाते तब तक जो पिस्टन है वो की करेगा मूव करेगा। क्लीयर, ठीक है जी। तो इसका मतलब की है जो गैस है एक सिस्टम है वो कोई ना कोई की कर रहा है कम कर रहा है। क्लीयर। नैक्सट आप थर्ड गल करांगे इंटरनल एनर्जी की, यानी कि यू की। इंटरनल एनर्जी या टोटल एनर्जी सिस्टम की उसनों आप की कह दें इंटरनल एनर्जी, टोटल एनर्जी कंटेन्ड इन द सिस्टम उसनों इंटरनल एनर्जी कह देना, कंटेन्ड इन सिस्टम उसनों आप की कह दें इंटरनल एनर्जी कह दें, जिन्हों यू नाल भी लिखा जाता है कैपिटल ई दे नाल भी लिखा जाता है। इंटरनल एनर्जी किस ते डिपेंड करती है, स्टेट ऑफ द सिस्टम ते, स्टेट ते डिपेंड करती है सिस्टम की कि किस स्टेट दे विच है, ना कि इस ते कि सिस्टम ने स्टेट अटेन किस तरीके नाल की हुई है। मतलब ये एक की है स्टेट फंक्शन है, मैं तुहानूं पहला भी दस्सिया सी इंटरनल एनर्जी जो करवाया सी कि अपने कोल की है एक स्टेट फंक्शन है। क्लीयर, ध्यान दे विच रखियो, ठीक है जी। एक गल होर, अगर अपने को वर्क डन पॉजिटिव होंदा तो वर्क डन की है ऑन द सिस्टम है,
ये चीज़ां इंपॉर्टेंट ने क्योंकि नोमैरिकल बनते एग्जाम के विच। अगर वर्क डन तुहाडे कोल नैगेटिव है तो वर्क डन की अपने कोल बाय द सिस्टम। ये चीज़ां की है तुसी ध्यान रखोगे, ठीक है। जिहड़ी इंटरनल एनर्जी है वो तो पता चल ही गया होना, स्टेट फंक्शन है जो इनीशियल ते फाइनल स्टेट ते डिपेंड करती है बट पाथ ते डिपेंड नहीं करती है, मैं तुहानूं पहला करवा चुकी हाँ क्लियर, ठीक है जी। नैक्सट आपां नैक्सट क्लास दे विच करांगे। उम्मीद है तुहानूं इन्नियां चीज़ां समझ आ चुकियां ने एंड कोई भी तुहाडा डाउट नहीं होएगा, क्लियर। बट अगर तुहाडा कोई भी डाउट हुंदा है तो तुसीं कमेंट सैक्शन दे विच कमेंट करके पुछ सकदे हो ईजली कमेंट करो, तुहानूं हर कमेंट का रिप्लाई मैं दिंदी हाँ, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन तुसीं पूछ सकते हो मेरे तो। अगर तुहानूं वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना ना भूलियो, शेयर करियो अपने फ्रेंड्स के नाल जो मास्टर कैडर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या कोई भी कॉम्पीटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, साइंस रिलेटेड तुसीं वीडियोज़ शेयर कर सकते हो। अगर चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सबसक्राइब करना ना भूलियो, बैल आइकन प्रेस कर लियो सो दैट तुहानूं सारियां अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलदियां रहन। टैलीग्राम ग्रुप ਨੂੰ भी ज्वाइन कर लियो जिन्होंने नहीं किया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के विच तुहानूं मैं लिंक प्रोवाइड कर दूँगी, क्लीयर। दो ग्रुप ने, एक ईटीटी कैडर का है, एक मास्टर कैडर का है, क्लीयर। तुसी जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो उस रिगार्डिंग तुसी टैलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है जी। कमेंट सैक्शन के विच दस सकते हो तुहानूं वीडियो किदां दी लगी है एंड सुजैशनस देना ना भूलियो, ठीक है जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू।